How many of you doing discipleship Bible class here? कौन यहाँ पर बाइबल क्लास कर रहा है? Discipleship of grace. अनुग्रह में शिष्य बनाना Yeah. जो रविवार को होता है. If you do that class, it says that making a disciple is not so easy. It happens over the many years. शिष्य बनाना आसान नहीं है, उसके लिए हमें कई साल मेहनत करना पड़ता है. And it takes many years to become a disciple. और कई साल लग जाते हैं एक अच्छा शिष्य बनने के लिए. Me or someone else comes here and preaches the word of God sometimes, but the real, the man who makes you disciple is our pastor. और मैं या कोई और यहाँ पर आकर संदेश देता है वो तो ठीक है, लेकिन सच्चा जो जो हमें शिष्य बना सकते हैं वो है हमारे पास्टर. Because he thinks about you, he prays for you, he teaches you, and he makes you disciple over the years. क्योंकि वो हमारे बारे में सोचते हैं और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और he makes you disciple. और वो आपको शिष्य बनाना चाहते हैं. Yeah, so now we are all the fruit of pastor's work. और आज हम सब परमेश्वर पास्टर के कार्य का फल है. Yeah. So now we are going into the word of God, and let's read from the book of Luke. और अब हम वचन में जाएंगे. 23. लूका 23 verses from 42 to 43. 42 से 43 पढ़ेंगे. Luke 23, 42, 43. लूका 23 42 से 43. तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना. उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा. One more verse from Psalm 25, 6 and 7. और भजन संहिता 25, 6 और 7. मैं दाऊद Psalm 25, 6, 7. भजन संहिता 25, 6 और 7. 25. अगर किसी को मिला है तो प्लीज पढ़ सकते हैं. I have here I'm reading Hindi. हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं. हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर. अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर. Let's pray now. Lord, thank you धन्यवाद for पर this opportunity that you gave us to meditate from your word. ये समय दिया परमेश्वर कि हम आपके वचन पर ध्यान दे सकें. Lord, I am nothing but Lord, anoint with your Holy Spirit. हम कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा. The word is yours, and the people are yours. वचन आपका है परमेश्वर, और लोग आपके हैं. Lord, you speak through your throne. आप अपने सिंहासन से बात कीजिए हमसे परमेश्वर. In Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आमीन. These verses that we read, we notice, the thief, first verse, Luke 23, a thief on the cross. He was saying, Lord, remember me when you come into your kingdom. तो लूका के जो हम 23 के 42 में देखते हैं कि He's saying, Lord, remember me when you come into your kingdom. कि परमेश्वर तू मेरी सुधि लेना जब मैं तेरे सामने आऊंगा. So now he's confessing, you know that two thieves are, hung on the cross with Jesus Christ. आप जानते हो कि दो अपराधी
यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे। One on the left side, one on the right side of Jesus एक Christ. दाईं ओर था और एक बाईं ओर था, And in the middle, Jesus was crucified. और बीच में यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। And the one on the right side, the thief, he was, suddenly started praying to Jesus. और जो राइट साइड में था वो परमेश्वर वो प्रार्थना कर रहा था। He's praying like this, Lord, you remember me when you come into your kingdom. वो प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु जी मुझे याद रखना जब मैं आपके सामने आऊंगा। Only one sentence. उसने सिर्फ एक शब्द कहा And immediately Jesus answered, said, today you will be with me in the और paradise. तुरंत यीशु मसीह ने कहा कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। So I want to focus on this word. In my message you will hear the word remember, remember. और मैं चाहता हूँ कि इस वचन पर, इस शब्द पर आप ध्यान दें Remember. और याद रखें। Though he's praying, Lord, remember me. तो वो प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरी सुधि लेना। That means he's confessing two things here. We see faith and confession. हम यहाँ पे देखते हैं कि उसका विश्वास और Confession. स्वीकार करना, गलतियों को स्वीकार, पश्चाताप करना And kabul karna. या कबूल करना। So he's confessing that Jesus is the coming king. और वो पश्चाताप कर कर कह रहे हैं कि यीशु मसीह जो आने वाला राजा है, Because he's saying, remember me when you come into your kingdom. कि वो कह रहा है कि मुझे ध्यान में रखना जब तू अपने When you come in with your kingdom. जब आप अपने राज्य के साथ आओगे। That means he's confessing that Jesus is the king. कि वो कबूल कर रहा है कि यीशु मसीह राजा है। And then by faith he prayed to him, remember me. और विश्वास के साथ वो प्रार्थना कर रहा है कि मुझे याद रखना। That means he is, asking, praying that save me, Lord, और वो पूछ रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मुझे बचाना and accept me और मुझे स्वीकार करना and receive me when you come into your with your kingdom. और मुझे अपने साथ लेना जब तू अपने राज्य के साथ आए। So that's the same prayer that we can do, today. और Lord, इसी remember me. और इसी प्रकार आज हम प्रार्थना कर सके कि प्रभु यीशु मुझे ध्यान में रखना, मुझे याद रखना। So, and David is also saying, in the Psalm 25, 6, 7 we have seen. और दाऊद भी 25, 6, 7 में यही कहता है भजन संहिता के। And he's saying, remember me, do not remember my sins, but remember your mercies. वो कह रहा है कि प्रभु मेरे पापों को याद मत रखना, लेकिन आपकी महिमा को याद रखना जो आपने मुझ पर। So David is also confessing that I am a sinner. और दाऊद भी पश्चाताप कर रहा है, कबूल कर रहा है कि मैं पापी हूँ। I am a sinner, but you are merciful. वो कह रहा है कि मैं अपराधी हूँ, लेकिन आप परमेश्वर कोमल, दयालु, करुणा करने वाले। So do not remember my sins and my transgressions, but remember your tender mercies. लेकिन अब मेरे अपराधों को, मेरे पापों को प्रभु जी याद मत रखना, लेकिन अपने प्रभु जी करुणा को याद रखना। So David is confessing that I am a sinner, but you are merciful. तो वो कबूल कर रहा है कि मैं पापी हूँ, लेकिन आप दयावान हो परमेश्वर। So do not remember my sins, but remember your mercies. लेकिन मेरे पापों को, मेरे अपराधों को मत याद रखना, लेकिन तेरी महिमा को याद रखना। So whenever we call upon God, Lord, remember me in your mercy. God do not remember our sins, but He remembers Himself, His nature. लेकिन जब हम प्रार्थना ऐसे करते कि प्रभु जी तू अपनी महिमा को याद रखना, तब परमेश्वर हमारे अपराधों को नहीं, लेकिन अपनी महिमा को याद रखता है। He remembers His mercies. और वो अपने करुणा को याद रखते हैं। Yeah, because His nature is mercy. Bible says that He is merciful and He is loving kindness since old, since ancient days. और बाइबल जैसे कहता है कि वो करुणामय और प्रेममय परमेश्वर है। Since the since the eternity He is. और वो अनंत काल के लिए करुणामय और प्रेममय That's परमेश्वर। why do not remember my sins, but remember your own loving kindness. इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रभु जी मेरे अपराधों को मत याद रखना, लेकिन अपनी करुणा को, अपने प्रेम को याद रखना। So 2 points I say. First, God doesn't remember our sins.
इसीलिए दो पॉइंट्स हम कहेंगे कि परमेश्वर हमारे पापों की याद मत रखना, but He remembers His covenant. परंतु अपनी वाचा को स्मरण रखना। So God remembers His covenant, परमेश्वर अपनी वाचा और वायदे को स्मरण रखता है and He gives us, gift of grace. और वो उपहार अनुग्रह का हमें देता है। So in the story of Zacharias and Elizabeth, और हम कहानी देखते हैं जकरिया और एलिजाबेथ का in the Gospel of Luke, chapter 1, और लूका के एक अध्याय में हम देख सकते हैं। there, Zacharias and Elizabeth are couple, और जो जकरिया और एलिजाबेथ दोनों ही पति पत्नी से जोड़े थे and God remembers them, and they were without child. और परमेश्वर उन्हें याद रखता है और जो कि बिना संतान के थे, And then, God gives them a child. और परमेश्वर उन्हें संतान देता है। The Zacharias meaning Lord remembers. और जकरिया का अर्थ है कि प्रभु याद करते हैं। Elizabeth means God's promise. और एलिजाबेथ का अर्थ है परमेश्वर का वादा। And what is the name of their child? John the Baptist. पुत्र का नाम क्या था? यूहन्ना बपतिस्मा देने And वाला। John means the Lord is gracious. यूहन्ना का अर्थ है प्रभु दयालु है। And if you combine their names, the meaning is that Lord remembers His promise and gives gift of grace. और यदि हम इन सारे नामों को जोड़ते हैं तो हम देख सकते हैं प्रभु याद करते हैं और अपने वायदे को, And then He gives the gift of grace. और परमेश्वर उपहार जो है वो अनुग्रह का हमें देते हैं। So Lord never remembers our sins, but He remembers His covenant. लेकिन परमेश्वर हमारे पापों को याद नहीं रखता, लेकिन अपने वायदे को याद रखता है। Deuteronomy chapter 7 verse 9 we see. व्यवस्था विवरण 7:9 हम देख सकते हैं। इसीलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। उसके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर करुणा करता रहता है। God keeps His covenant and mercy for 1000 generations. और परमेश्वर जो है वो अपने वायदों को हजारों पीढ़ी तक रखता है। Those who love Him and keep His commandments. और जो उसके आज्ञा पर चलते हैं और उसके वचन का पालन करते हैं। And in Psalms chapter 105, 8-10 it is saying that, Psalms 105, वचन संहिता 105, and it says that He remembers His covenant forever. वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता है। 105 का 8। And the word which He commanded for 1000 generations. और जो वाचा वो रखता है वो हजारों पीढ़ी के लिए ठहराया गया The है। covenant which He made with Abraham and His oath to Isaac and He's confirmed it to Jacob for statute to Israel an everlasting covenant. वो वाचा जो उसने अब्राहम के साथ बांधे और उसके विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इज़राइल के लिए वह कह कर सदा की वाचा करके दृढ़ किया है। As Pastor said in the offering message, God remembers the covenant which He made with Abraham. जैसे हमने पास्टर ने जो संदेश लिया उसमें हम सुनते हैं कि परमेश्वर जो वायदा करता है उसे He remembered the covenant He made with Abraham. जो वायदा उसने अब्राहम के साथ किया है उसे याद रखा है। So He blessed, in that His seed will multiply over the entire world. और उसने जैसे कि परमेश्वर ने कहा कि उसके वो तिनकों के समान उसके वंशज होंगे। And the thief on the cross praying to Jesus, Lord, remember me when you come with your kingdom. और जो चोर जो क्रूस पर था परमेश्वर यीशु मसीह के लेफ्ट हैंड साइड पे वो कहता है कि परमेश्वर मुझे याद रखना जब तो अपने राज्य के साथ आएगा। David also we saw that do not remember my sins but remember your mercies. और हम देखते हैं दाऊद भी कहता है कि प्रभु मेरे अपराधों को स्मरण मत रखना लेकिन अपनी करुणा को अपनी दया को स्मरण कर। So Bible says in Psalms 103 verse 14. वचन संहिता 103 के 14 में हम देखते हैं क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रखता है कि मनुष्य मिट्टी ही से है। मिट्टी ही है।
what does God remembers? That परमेश्वर He क्या याद remembers रखता है? that we are dust. वो परमेश्वर स्मरण रखता है कि हम मिट्टी है। You know, what are we? We are dust. हम क्या है? हम मिट्टी है। You know, God knows that. परमेश्वर इसे जानता है, धूल है। You know, we are धूल, मिट्टी. हम धूल है, मिट्टी है। That means we are nothing before God. कि हम परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। That's why whenever you call, Lord remember me, Lord remembers, अरे these are dust. कि जब हम परमेश्वर को कहेंगे कि प्रभु जी हमें स्मरण करना, तो परमेश्वर स्मरण करेगा, कहेगा कि ये धूल है। So we are dust because that's why He will have pity on us. इसीलिए परमेश्वर हम जैसे हम धूल है, परमेश्वर हम पर ध्यान रखता है। And God doesn't remember our sins. और परमेश्वर हमारे अपराधों को ध्यान नहीं रखता। And what does it mean that God remembers us? इसका क्या अर्थ है कि परमेश्वर हमें स्मरण रखता है? As we see now, you know, He remembers that we are dust. कि परमेश्वर जानता है कि हम धूल है, He remembers that we are sinful, कि वो जानता है कि हम पापी हैं, and He remembers that we are weak, कि वो जानता है कि हम कमजोर है, and He remembers that we are helpless. वह जानता है कि हम असहाय है। So He remembers that we also need a savior. इसीलिए वह जानता है कि हम उद्धारकर्ता को चाहते हैं, And we need, you know, God. और हम यीशु मसीह को चाहते हैं। That's why we need Jesus. इसीलिए हमें यीशु मसीह की आवश्यकता है। So whenever God remembers us, He remembers the finished work of Jesus Christ on the cross. जब भी परमेश्वर हमें याद करता है, तो वो याद करता है कि जिस प्रकार परमेश्वर ने अपना कार्य समाप्त किया, और वो समाप्त का जो समय था वो मनुष्य के साथ था। मनुष्य के साथ उन्होंने अपना कार्य समाप्त किया, So, संपूर्ण कार्य किया। so when you call, Lord, remember me in your mercy. जब हम बोलते हैं, कहते हैं कि प्रभु अपनी करुणा में हमें याद रखना, So what does God remember? तो परमेश्वर क्या याद करते हैं? God remembers His Son hanging on the cross, परमेश्वर याद करता है अपने पुत्र यीशु मसीह को, जो क्रूस पर लटकाया गया, who died in your place, वो हमारे स्थान पर, who died in my place. वो मेरे स्थान पर मरा गया। So His mercies are new every morning. और उसकी करुणा हमेशा नई है। You know, in Lamentations chapter 3 verse 22-23, विलाप गीत 3:22-23 हम देखते हैं। it says, His mercies are new every morning. उसकी करुणा हर दिन नई है। And also Hebrews 4:16 says, book of Hebrews 4:16, और इब्रानी 4:16 में हम देखते हैं, His throne of God is the called, you know, throne of grace. उसकी सिंहासन जो है वो करुणामय है। So we can approach His throne of grace boldly, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. और हम परमेश्वर के अनुग्रह को मांग सकते हैं, ताकि हम दया प्राप्त कर सके और जरूरत के समय मदद करने के लिए अनुग्रह पा सके। So what does it mean when we ask God to remember us? जब हम परमेश्वर से कहते हैं कि हमें याद रखना, तो इसका क्या मतलब है? You know, it's acknowledging that we are sinners इसका मतलब है कि हम जानते हैं कि हम पापी हैं, and we need grace, और हमें अनुग्रह की जरूरत है, and we trust in His Son Jesus Christ, और हम यीशु मसीह उसके पुत्र पर विश्वास करते हैं, and we accept, you know, Jesus as our Savior, और हम स्वीकार करते हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, and then we confess that we only can be saved through faith, और हम विश्वास कर सकते हैं कि हम सिर्फ विश्वास के द्वारा ही बच सकते हैं, and we need God's strength in our pitiful situation. और हम जब कठिन समस्या में होते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ हमें चाहिए होती है। That's what the thief on the right side of Jesus, you know, who was crucified, you know, he alongside of him said, Lord, remember me when you come with your kingdom. इसीलिए वो जो चोर है, जो अपराधी है, जो यीशु मसीह के लेफ्ट हैंड साइड पे रहता है, वो कहता है कि प्रभु जी मुझे याद रखना मेरे अपने राज्य के साथ जब आप आओगे। Yeah, it takes faith to, you know, say like that. ये विश्वास होना जरूरी है जब हम ऐसा कहते हैं। You know, without faith we can't call, you know, pray to God.
और बिना विश्वास के हम परमेश्वर को नहीं बुला सकते, So- प्रार्थना नहीं कर सकते। So then Jesus immediately responded और तुरंत यीशु मसीह ने वहाँ पर उत्तर दिया to his faith confession. जो उसने विश्वास के द्वारा स्वीकार So किया। today you will be with me in paradise. और आज तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में हो। And the second point is God remembers of our situation and condition that we are in. और दूसरा पॉइंट है परमेश्वर हमारी स्थिति और आवश्यकता के बारे में याद रखता है जिसमें हम हैं। First point, God does not remember our sins, पहला पॉइंट है कि परमेश्वर हमारे अपराधों को याद नहीं रखता, but He remembers His loving kindness, His covenant. लेकिन वो अपने वादा को, अपने प्रेम को और अपने दया को याद रखता है। Second point, God remembers our situation and our condition. और दूसरा पॉइंट है परमेश्वर हमारी स्थिति और हमारी आवश्यकता को याद रखता है जिसमें हम हैं। In the book of Lamentation, chapter 3, verse 17 to 26, विलाप गीत 3 27 से 26। chapter 3, verse 17 to 26. विलाप गीत 3 16 से 17। Here, Jeremiah, the Lamentation, chapter 3, verse 17 to 26. विलाप गीत अध्याय 3 17 से 26। Here, Jeremiah, Jeremiah was in affliction. यिर्मयाह जो है वो दुख में था। He feels like God has forgotten him. उसे लगता है कि परमेश्वर उसे भूल गया, But he remembered that God's mercies are new every morning. लेकिन फिर उसे याद आता है कि परमेश्वर की दया हर सुबह नहीं है। Let's read that from 17 to 24. हम पढ़ते हैं Uh, Lamentations chapter 3 verse 17 24. और मुझको मन से उतार कर कुशल से रहित किया है. Jeremiah was saying that I am disappointed. यिर्मयाह कहता है कि मैं अफसोस करता हूँ, मैं कल्याण भूल गया हूँ. मैं कल्याण भूल गया। इसलिए मैंने कहा मेरा बल नष्ट हुआ और मेरी आशा जो यहोवा पर थी वो टूट गई. मेरा दुख और मारा मारा फिरना, मेरा नाक दौड़ने और विष का पीना स्मरण कर. Here Jeremiah was in great affliction. जो यिर्मयाह था वो बड़े दुख में था। और वर्स 20 वचन 20 में मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूँ, इससे मेरा प्राण भाग जाता है, परंतु मैं ये स्मरण करता हूँ इसीलिए मुझे आशा है, हम मिट नहीं गए. ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वो नई होती रहती है. तेरी सच्चाई महान है. मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा. तो फर्स्ट Jeremiah was feeling that he cannot expect anything from God because he feels like God left him. कि यिर्मयाह सोचता है कि मुझे परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सोचता है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, भूल गए हैं। But he remembers that God's mercies are new every morning. फिर उसे याद आता है कि परमेश्वर की दया हर दिन नई होती जाती है। How many think that you are getting fresh grace every morning? कितने लोग इस बात को मानते हैं कि हमें हर दिन परमेश्वर की नई दया मिलती है, हर सुबह। Every day you have breakfast. हर दिन हम नाश्ता करते हैं। Same way God gives you fresh grace. उसी समान परमेश्वर हमें एक ताज़ी दया हम पर करता है, एक सुबह देता है। Jeremiah remembered that every day God gives me new mercy. यिर्मयाह को याद आया कि परमेश्वर हर दिन उस पर नई दया करता है। So he wake himself and then he said, I have hope now. कि वो अपने आप को जगाता है कि मेरे पास एक आशा है। In the end he says, I have hope. अंत में वो कहता है कि मेरे पास एक आशा है। So thanks God and for His faithfulness and His daily mercies. और वो कहता है कि परमेश्वर को उसकी वफादारी और दैनिक दया के लिए धन्यवाद। So in the same way, when Hannah also, in the book of Samuel, शमूएल की किताब में हम देखते हैं हन्ना को। Hannah was without child. वो बिना बच्चे, वो बिना संतान के थी। And then she went into temple. और वह मंदिर में गए। And then she poured out
her heart and then she was praying. और वो अपने पूरे हृदय के साथ प्रार्थना करती है। And we see that in the 1 Samuel chapter 1 verse 11, chapter 1, 1 Samuel chapter 1 verse 11. पहला शमूएल 1:11। और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर चुरा फिरने ना पाए। और एंड देन वर्स 19 we see 19 का वचन। 19 वचन। वे सबे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। We see here God remembered Hannah. हम देखते हैं कि परमेश्वर हन्ना को स्मरण करते हैं। And then God gave her a child Samuel. और परमेश्वर उसे संतान देते हैं शमूएल नाम का। So what does Hannah did? Hannah poured out her heart and prayed to God, Lord remember me. हन्ना ने क्या किया? हम देखते हैं ना, परमेश्वर के सामने पूरे हृदय से वो प्रार्थना करती है और परमेश्वर उसे स्मरण करता है। The Bible says that God remembered her. और बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने उसे स्मरण किया। In the same way God also remembered Abraham. और उसी प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को भी याद किया। And then he gave him Isaac. और इसहाक को परमेश्वर ने अब्राहम के लिए दिया। So in the book of Exodus, और निर्गमन के किताब में देखते हैं हम chapter 2, अध्याय 2 verse 23 to 25. 23 से 25 तक। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे और उनकी दोहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया और परमेश्वर ने इजराइलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। People of Israel are in the land of Egypt. और जो इजराइल के लोग थे वो मिस्र देश में थे And they were being tortured by Egyptians. और वो बहुत ही परेशान हो गए थे इजराइल लोगों से। They were tortured by Egyptians. और वो सताए गए थे मिस्र के लोगों से। And then they started crying to God. और वो परमेश्वर के सामने कराहने लगे। And they cannot tolerate the torture. और वो जो परेशानी थी, जो तकलीफ थी, वो सहन नहीं कर पा रहे थे। So God saw his people, they are in affliction. और परमेश्वर ने देखा कि जो लोग हैं बहुत ही परेशानी में, वो उनकी कराहना सुनता है। And when they called that God, Lord remember us, God remembered the covenant of Abraham. कि वो लोग कहते हैं कि परमेश्वर तो अपने वाचे को याद रखना जो वाचा तूने अब्राहम से बांधी थी। So then he sent Moses to deliver from the Egypt. और परमेश्वर ने मूसा को भेजा इजराइलियों को मिस्र से छुड़ाने के लिए। So whenever people of God called on God, God remember us, he immediately responded. और जब भी कोई कहता है कि परमेश्वर मुझे स्मरण रखना, तो तुरंत परमेश्वर किसी को भेजते हैं। So what does it mean, when we call Lord remember me, that doesn't mean that God forgot us. जब हम कहते हैं कि परमेश्वर मुझे स्मरण रखना, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमें भूल गया है। Why do we call Lord remember me? हम ऐसा क्यों कहते हैं कि प्रभु मुझे स्मरण रखना? Because he forgot. कि ऐसा नहीं कि वो भूल गया है। No, he never forgot you. वो हमें कभी नहीं भूल सकता। It actually meaning reminding yourself. हाँ, इसका अर्थ है कि प्रभु जी मुझे याद करो। No, reminding yourself.
याद में हाँ हम अपने हमें आप को हम हाँ मुझे अपने याद आप में को याद करवाता है कि परमेश्वर हमें जानता है। व्हाट डज इट मीन? God did not remember forgot you, but you are reminding yourself that God remembers you. Okay. इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर हमें भूल गया, लेकिन इसका अर्थ ये है कि हम खुद को याद दिलाते हैं कि परमेश्वर हमें याद है। And then you remind yourself that you don't get to the side of the devil. कि इसका अर्थ है कि हम जब ऐसा करते हैं तो हम शैतान के पक्ष में नहीं होते हैं, But you get to the side of God. लेकिन हम परमेश्वर के पक्ष में हो जाते हैं। And you don't get to the side of the world, इसका अर्थ है कि हम संसार के पक्ष में नहीं होते हैं, but you get to the side of Jesus Christ, लेकिन हम यीशु मसीह के पक्ष में हो जाते the हैं, Savior, बचाने वाला and remain with Him. और स्मरण रखने वाला। Remain with Him and obey Him. जब भी शैतान की तरफ नहीं, संसार की तरफ नहीं, लेकिन परमेश्वर की तरफ आना और उसके साथ बने रहना। That's what you say, that you remind yourself. यही तुम हमें अपने कहना है, आप को याद करते हो कि करवाना है। परमेश्वर किस तो मुझे याद करता है। So you don't get carried away by the temptations of the world. कि तब हम संसार की जो अभिलाषा है उसमें नहीं होते हैं, And you don't get caught up in the trap of the powerful enemy, the devil. और शैतान के हम जो कब्जा है उसमें नहीं आते हैं, And you don't get distracted by the temporary pleasures of the world. और हम जो सांसारिक अभिलाषा है उसमें भरमाए नहीं जाते हैं, But the deceptive, offers of the devil. लेकिन जो शैतान के जो दिए गए लालच है उससे हम बच जाते हैं। You don't even get disappointed by the troubles. और हम जो परेशानियां आती है उससे Don't get disappointed by them. उससे हम अफसोस नहीं होते हैं। And the sorrows और परेशानियां and the sickness, और दुख, diseases जो भी रोग and the difficulties, और तकलीफें, joblessness, और यदि हमारे पास कुछ काम नहीं है, anxiety, depression, हाँ, या निराशा. मानसिक तनाव में जाना। So that means you won't get distracted by all of this. When you ask God, Lord, remember me, you get to the side of Jesus Christ. हाँ, और जब हम कहते हैं कि परमेश्वर मुझे स्मरण रख, इसका अर्थ है जो सारी चीजें इसमें हम नहीं फंस रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर की ओर पक्ष में रहते हैं, Taking shelter in the love of God. परमेश्वर की करुणा में, उसके And taking shelter in the परमेश्वर उसके सुरक्षा कवच में हम रहते हैं। परमेश्वर की प्रेम में शरण लेना, परमेश्वर की नाम में शरण लेना। In the Psalms 119, 1-33 says, मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता करने न दे। भजन संहिता 119 का 133। Don't let any sin rule over me. मेरे पैरों को अपने मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता करने न दे। So when we ask God, remember me, we are asking God, don't let any sin rule over me, but establish my steps according to your word. जब हम ऐसा कहते हैं कि प्रभु जी मुझे स्मरण करना, इसका अर्थ है कि हम किसी भी अनर्थ बात को अपने ऊपर प्रभुता करने नहीं देते, लेकिन अपने पैरों को परमेश्वर के वचन के मार्ग पर स्थिर करते हैं। So in Proverbs 18:10 says, the name of the Lord is a strong tower. और नीति वचन 18:10 में हम देखते हैं कि परमेश्वर का नाम मेरा मजबूत गढ़ है, And the righteous run to it and be safe. और उसकी धार्मिकता में मैं दौड़कर सुरक्षित महसूस करता हूँ। Righteous man runs to the tower. Name of the Lord. यीशु मसीह का नाम दृढ़ गढ़ है। धर्मी उसके अंदर प्रवेश कर सुरक्षित रहता है। तो where are we now? हम कहाँ पर हैं अभी? We are in the name of the Lord. और हम परमेश्वर के नाम में। It is a strong tower. और वो एक मजबूत गढ़ है। We run into it. और उसमें हम दौड़कर
and we be safe there. और उसमें हम सुरक्षित हो सकते So taking shelter in the love हैं of और God, परमेश्वर के सुरक्षित taking shelter उसके सुरक्षा कवच में हम आ सकते हैं and resting in His promises, और उसके वचन को वायदे को याद कर सकते हैं trusting God for His plans in your life. और परमेश्वर पर भरोसा रखना अपने हमारे जो जीवन के बारे में परमेश्वर ने जो विचार बनाए हैं Submitting our life completely into the hands of God. अपने पूरे संपूर्ण जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना So whenever we call on Him, जब भी हम उसे पुकारते हैं He remembers His Son Jesus Christ, हम याद करते हैं प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर याद करता है प्रभु that He died for us कि वो हमारे लिए मरा to give us hope, कि वो हमें आशा देता है to give us healing, वो हमें चंगाई देता है and to give us salvation, वो हमें उद्धार देता है and to give us deliverance. और वो हमें बचाता है And so He moves with compassion when we call on, God. और उस समय उस प्रकार वो आगे बढ़ता है चाहत के साथ कि हम जब परमेश्वर को And He comes to help us. और वो हमारी सहायता के लिए वो आगे आता So है He hears our prayer. He hears our prayer. वो हमारी प्रार्थना की ओर कान लगाता And है He holds our hand, और वो हमारे हाथों को थामता है whatever situation that you are in. कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में हो And He stands beside you. और वो हमारे साथ खड़ा रहता है And He says, I am with you. और वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ I am willing to heal you. और मैं सक्षम हूँ तुम्हें चंगाई देने के लिए I am willing to bless you. और मैं तुम्हें आशीषित करने के लिए सक्षम हूँ And I am willing to deliver you. और मैं तुम्हें बचाने के लिए सक्षम हूँ And He says, fear not. और वो कहता है मत डर So now are you ready to call on Jesus? Every day you can pray this simple prayer. Lord, remember me in your mercy. क्या आप तैयार हो हर दिन परमेश्वर को ये कहने के लिए कि प्रभु मुझे स्मरण रखना We need His grace every day. हमें उसकी अनुग्रह की हर दिन जरूरत है He doesn't remember our sins, वो हमारे अपराधों को याद नहीं रखता but He remembers His covenant. लेकिन वो अपने वाचा को याद रखता He है remembers the finished work of Christ. और वो अपने संपूर्ण कार्य को याद रखता है See, two thieves on the side of Jesus Christ. दो चोर थे जो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे One received salvation, एक ने उद्धार पाया the other one rejected it. और दूसरे ने उसे ठुकरा दिया So who rejected it? He did not remember God. He did not call upon God. किसने ठुकराया जिसने परमेश्वर को स्मरण नहीं किया But the one who prayed, Lord, remember me when you come with your kingdom. The same moment he got salvation. और दूसरे ने जैसे कि कहा कि प्रभु जी मुझे स्मरण रखना जब आप अपने राज्य के साथ आओगे तो तुरंत उसे उत्तर मिला A small example I will give you. छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ I have two kids. मेरे दो बच्चे इनके दो बच्चे हैं I love both of them equally. और ये अपने दोनों बच्चों को समान प्रेम करते हैं समानता में Yeah, I love them equally. और दोनों को वो एक समान प्रेम करते हैं But who will get more love? कौन अधिक प्रेम पाएंगे Who will experience my love? कौन अधिक प्रेम को महसूस करेंगे The one who comes into my bosom, who comes into my hands. जो उनके पास आएंगे जो उनके नजदीक आएंगे वो उनके प्रेम को महसूस करेंगे My little one comes, Yovel comes into my hands and he says, Papa, 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 और जो इनका छोटा बच्चा है वो इनके पास आता है और कहता है पापा पापा And then I kiss him, and I love him. और मैं उसे छूता और उसे प्रेम करता हूँ The same way, when you call upon God, remember me, and when you go into the hands of God, you will experience His love. और जब हम कहते हैं कि प्रभु मुझे स्मरण करना और उसके नजदीक हम जाते हैं तब उसके प्रेम को हम महसूस करेंगे And you will experience the presence of God in your life. और उसकी उपस्थिति को हम महसूस करेंगे अपने जीवन में So now, there is one song in English.
और एक गाना है इंग्लिश में, It says that great is your faithfulness, O God. आपकी महिमा, Great is your faithfulness, O God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters to mercy. He says, let's remember your people, remember your children, remember your promise. I will send that song in WhatsApp group. You can listen. मैं उसे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करूँगा, आप उसे ज़रूर सुनना। You know, in Hindi it says like this. हिंदी में ऐसे कहा है ये, It's very nice song. बहुत ही अद्भुत गाना है ये। महान विश्वास योग्य प्रभु, बदलता पापी दिल को तू, सुखदायक झरनों में चलाता हमको करुणा में, कोई जुड़ा ना कर सके हमें। सुधि कर तेरे लोगों की, सुधि कर तेरे बच्चों की, सुधि कर तेरे वाचे की प्रभु। तेरे अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है। So it's a very famous song. We every Sunday we sing this song in our churches. और ये बहुत ही फेमस सॉन्ग है और हर दिन कलीसिया में हम सुनते हैं। So taking shelter, when you say Lord remember me, you take shelter in the love of God. और जब हम कहते हैं कि प्रभु मुझे स्मरण रखना, तब हम परमेश्वर के सुरक्षा में आते हैं। So let's pray now. आइए हम प्रार्थना करें।